کے ساتھ لڑائی نہیں, اللہ بندوں کے ساتھ ایک دوسرے کو آزمانے کے لیے لڑاتا ہے. نہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے اچھا یہی ہے سزا. ایٹم ایک منٹ بھائی, I'll give you the entire chance. اوکے گائز, آپ لوگوں نے سنا, اللہ آزمانے کے لیے بندوں کو آپس میں لڑاتا ہے. یہی تو ہم سٹریم کر کے اتنے سالوں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج دیکھیے ان کے منہ سے حقیقت نکل گئی. اللہ لڑاتا ہے انسانوں کو. اللہ کفر کو اور امن والوں کو جب آزماتا ہے تو لڑاتا ہے. ہاں تو لڑائے گا, آزمانے کے لیے لڑاتا ہے, آزمانے کے لیے لڑاتا ہے نا. واہ بھائی واہ. آزمانے کے لیے لڑاتا ہے نا. ہمارے تمہارے عبید اندر الرحمان کتنا عزم ہے, صاحب کی, ہمارے تمہارے عبید اندر امن الرحمان, کا کتنا عزم ہے. ارے رکے رو بھائی, ہمارے عبید الرحمان صاحب کی سچائی کے لیے ان کے لیے گلاب پھینکو یار سب لوگ. چلو ایڈم کنٹینیو. ہاں بولو. بولو. اللہ آزمانے کے لیے لڑا رہا ہے, یہی آیت ہے نا اس میں, تاکہ کفر کو اور اسلام جو ہے, کفر اور اسلام یہ ہو جائے, سامنے آ جائے کہ کفر کیا ہے اسلام کیا ہے, سامنے آ جائے. سپاری تھوک دو نا پہلے. سپاری نہیں, میں وہ کھا رہا ہوں, سادہ کھاتا ہوں میں, سپاری نہیں کھاتا ہوں. دیکھے کیسا پکڑا میں, تھوک دو نا. نہیں میں سادہ کھا رہا ہوں, میں صاف بولا نا, میں سپاری, میں گندی چیز نہیں کھا رہا ہوں نا, نجس چیز نہیں کھا رہا ہوں نا. میں نجس کھاتا ہی نہیں ہوں, نجس بولتا ہوں. میری دونوں عادت نہیں ہے, نجس کھانا بولنا دونوں نہیں ہے. اچھا چلو بات کرو. میں جو بول رہا ہوں آج میں تم کو پڑھ کے بتاتا ہوں. ویسے ایک سیکنڈ بھائی, اللہ نے جو کتاب کا بولا ہے نا. بھائی ایک منٹ بھائی, آواز آ رہی میری بھائی؟ سپاری تو لکڑی کی بنتی ہے نا, اور لکڑی درخت سے نکلتی ہے, تو لکڑی نجس کیسے؟ نہیں, نشہ نجس, نشہ. سپاری میں تو نشہ نہیں نا ہوتا, سپاری تو لکڑی سے نکلتی ہے اور لکڑی درخت کی ہوتی ہے. بھائی تو نشہ بھی تو لکڑی سے نکلتا ہے نا. نہیں تو وہ نجس کیسے ہوگی؟ ابھی سپاری میں تو نشہ نہیں ہوتا. نجس اس طرح سے ہوا, جیسے بہت سی چیزیں ہیں, ابھی بہت سی چیز سپاری میں نجس ہوتی نشہ ہے. نہیں ہوتا. سپاری میں نشہ نہیں ہے, مگر ان کے سوچ میں تو یہی چیز ہے کہ میں نشہ کر رہا ہوں نا. کس نے کہا؟ یہی انہوں نے کہا تم سپاری کھا رہے ہو. اب لوگ تو یہی سوچیں گے کہ نا بھائی یہ سپاری کھا رہا ہے تو شاید وہ کچھ نشہ کر رہا ہوگا سپاری میں. میں تمہاری یہ بات بھی جو ہے نا, تمہاری تم کو آج ہے نا گیان دیتا ہوں میں. سنو, کیا نشیور چیز, ہر نشیور چیز نجس ہوتی ہے؟ نشہ نجس جو ہے نا, نشہ حرام ہے, فطرت کے خلاف ہے. میں سوال کیا کیا, نشہ حرام ہے فطرت کے خلاف ہے, وہ نہیں پوچھا. میں آپ سے یہ پوچھا, کیا نشیور چیز جو نشہ جس سے ہوتا ہے, کیا وہ نجس ہوتی ہے؟ اس میں مجھے شبہ ہے, میں نہیں پورا بول سکتا نجس ہوتی ہے کہ نہیں, مگر یہ جو ہے نا پھر بڑی بڑی فطرت باتیں کے کرتے ہو خلاف ادھر آ کے. نہیں, میں اس لیے بول رہا ہوں کہ نجس مت اچھا بولو, چیزیں جیسے سپاری کو نجس کیسے کہہ دیا تم نے, یہ بتاؤ. ابھی جیسے سڑکیں بنائی جاتی ہے, اکثر نشائیں جو نشہ کیا جاتا ہے, تو وہ تو سپاری کو نجس کیسے بنا دیا وہ نجس بتاؤ. ہوا نا. سپاری پہ کیا سپاری پیشاب نہیں کر کے اس نجس کو ہے نا سڑاکے بھائی, میں بناتے ہیں سپاری کیا؟ کھا رہا ہوں نجس نہیں ہے, مگر جو تم بولو گے تو لوگ تو وہی تو کہیں گے نا کہ بھائی یہ سپاری کھائے تو بولے نجس ہی کر رہا ہے. مگر میں سادہ کھا رہا ہوں نا, میں سادہ میٹھا کھا رہا ہوں نا. سپاری میں نجس کیا ہے وہ بتا دو بھائی. سپاری میں نجس کا ہے کہ نجس, سپاری نجس نہیں ہے, سپاری کیسے نجس ہے؟ تو تم نے کیوں بولا سپاری نجس ہے؟ میں نہیں کھاتا, تم نے بھی بولا. وہ تو آدمی اپنے ٹیسٹ کے لیے, سواد کے لیے کھا رہا ہے منہ پہ. ابھی تم نے بولا سپاری نجس ہے, میں نہیں کھاتا, تو سپاری نجس کیسے وہ بتاؤ. بھائی میں تمہاری سوچ کے اوپر قول ڈالا ہوں کہ تم سوچ رہے ہو کہ شاید میں سپاری کھا رہا ہوں, گٹکا کھا رہا ہوں یا نجس ہوگا, تو یہ بھائی نجس نہیں ہے. یہ بول سپاری رہا ہوں بولا تم تھا, کو. تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ سپاری نجس ہے؟ ارے تو تم کو سپاری سمجھ میں آ رہا ہے نا, میرے کو گٹکا سمجھ میں آ رہا ہے نا. ساحل کے اپنے منہ سے سپاری بول رہا تھا یار, یہ کیا بندہ ہے یار. نہیں وہ سپاری کھا کے بول رہے ہیں. چلو آگے بڑھو. اللہ جو ہے وہ لڑائی کراتا ہے, اس کے بعد کیا؟
اچھا وہ एडम छोड़ो, ने सवाल किया था कि लड़ाई अल्लाह कराते से हैं ना. क्या सवाल किया था? एडम आपने क्या सवाल किया था? अल्लाह से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? मैंने क्या सवाल पूछा था? किया था कि कुरान की आयत है जो कहती है जो लड़ाई करते हैं अल्लाह से लड़ाई कैसे हाँ की जाती है वो बताएं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अल्लाह से लड़ाई अल्लाह की फितरत जो है उससे फितरत के खिलाफ करना, कुफ्र करना, ये अल्लाह से लड़ाई है. कहाँ लिखा है? कुफ्र का कहाँ लिखा है? डिफिनेशन क्या है ये बताओ. नहीं, इस आयत में कुफरी है, कहाँ वो लिखा? कुफरी कुरान बता में रही कहाँ है ना, लिखा? कुफरी लिखा है. हाँ? कुरान में कहाँ लिखा है? अरे कुफ्र का मतलब है, तुमको बताता हूँ मैं, सुनो. अल्लाह से कुफ्र लड़ाई, कुरान में कुफ्र लिखा हुआ है. अल्लाह से लड़ाई को कुरान एक्सप्लेन करता? हाँ, अल्लाह से लड़ाई यही है ना. अल्लाह से लड़ाई, अल्लाह के भाई ये आपने बोला अल्लाह है से ना, लड़ाई, तुम कुरान में कहीं पे अल्लाह से रेफरेंस है? लड़ाई, इस्लाम से लड़ाई करना अल्लाह से लड़ाई है. इस्लाम से लड़ाई करना अल्लाह से लड़ाई है। इस्लाम के साथ किताल करना अल्लाह से किताल करना है तुम्हारा. इस्लाम का किताल कौन कर सकता है भाई? इस्लाम तो एक थियोलॉजी है, इस्लाम थ्योरी के है। साथ किताल क्यों नहीं होगा? जब तुम इस्लाम वालों के साथ किताल करोगे तो इस्लाम का ही किताल होगा ना. कैसे हैं यार? कहाँ से कैसे? लॉजिक उठा के लेके आते हैं? कौन सी लॉजिक है यार तुम लोगों की? क्या कौन सा? लॉजिक अरे क्या है तुम लोगों की? तुमको इतना भी नहीं समझ में आ रहा है. अब तुम मुसलमान से तुम किताल करोगे तो इस्लाम को मिटाना हुआ ना, मिटाना ही मिटता है होगा. इस्लाम? इस्लाम मिटता है? हाँ, इस्लाम मिटता है? इस्लाम मिटेगा? क्यों मिटेगा इस्लाम? अरे वाह, इस्लाम माशाअल्लाह माशाअल्लाह इस्लाम माशाअल्लाह. इस्लाम मा- सुनो. ये इस्लाम इनके जो है, एक मिनट रुको भाई, सॉरी मैं म्यूट किया. माशाअल्लाह आज ये भाई के मुंह से सब अच्छी अच्छी बातें निकल रही है. सुभान अल्लाह। मैंने पूछा इस्लाम मिटेगा तो इन लोगों ने कहा इस्लाम मिटेगा. माशाअल्लाह, चलो बहुत अच्छा. अच्छा हाँ भाई. इनके घर पे सुनो भाई अगर आपके घर पे अगर आपके घर पे ना दिवाली की मिठाई आए हो ना, अगर आई होगी ना, तो अभी जो आपने बातें बोली ना, इस खुशी में अरे हमारी भाई, तरफ से खा लीजिए. अरे भाई, दिवाली की मिठाई उठाई को लात मारूं मैं दिवाली की मिठाई उठाई को कुछ मानता नहीं. माय दिवाली गॉड. ये वो, क्योंकि मैं अल्लाह के साथ अगर किसी का भी नाम लिया एक जाए सेकंड रुकना, उसे एक नहीं सेकंड रुकना, मानता. एक सेकंड रुकना। भाई लोगों, अब आप लोगों को पता लग गया, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, 3300 लोग इसमें सुन रहे हैं, किसी मुस्लिम को दिवाली की मिठाई मत भेजना. आपकी मिठाई लात लगेगी, डस्टबिन में जाएगी, भाई पैसे आपके जाया होंगे, मुस्लिम खाएंगे नहीं. तो अगर आपको कोई एडम भी भाई, मुस्लिम दोस्त है, मिठाई एडम अरे मत उसने भेजना अल्लाह के उसको. सिवा किसी का नाम लिया तो मैं तो नहीं मानता भाई, साफ बात. एडम भाई हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा दिवाली के दिन भाई. अभी भी 5-6 दिन की मिठाई बची हुई है मेरे पास. क्या कर रहे हो मियाँ? किसी मुस्लिम को मैं मिठाई मत देने का. देने का क्या, लेने का ही नहीं. हमको अल्लाह के सिवा किसी का नजर चाहिए नहीं भाई. हमको फितरत पे रहने का है. अल्लाह की फितरत है, इस्लाम की फितरत. हमको कुफ्र की फितरत पे थोड़ी ना रहने का है. कुफ्र नफरत की फितरत. कुफ्र मतलब तुम्हारा आपस का तुम्हारा नफरत है, तुम्हारा तो बात सुनो, अमन के खिलाफ तुम्हारा इल्हाद है. हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? अरे हल्दीराम जल्दीराम पूछ रहा हूँ, हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? ये बिचक क्यों जाता है यार आदमी बीच बीच में? अरे भाई, मैं बोल रहा हल्दीराम जल्दीराम को काय को ला रहे हो भाई? उसको खाली मैं पूछ रहा हूँ, हल्दीराम की मिठाई खाई है कभी? नहीं, मैं किसी का नाम देखता नहीं. जो मिलता है मैं नाम नहीं देखता किसी का. काजू की बर्फी नहीं खाई कभी हल्दीराम की? खाते गए जिसका नाम. हाँ, अरे हल्दीराम की काजू की बर्फी नहीं खाई कभी? अरे भाई, मैं नाम और दाम नहीं देखता हूँ. मैं खाने का मतलब रखता हूँ मैं, बस दूसरा यानी कि हिंदुओं के हाथ की बनाई हुई मिठाई खाई है तुमने? किसी का भी हो, खाने से मतलब अगर उस पे गैरुल्लाह के नाम का नजर होगा तो उसे नजर कब होता है? दिवाली की मिठाई में नजर कब होता है? लोग मतलब बाजार नाम से लेना. खरीदते हैं, लोगों के घरों में भेज देते हैं. नजर मतलब उस पे नाम लेना तो नजर हो गई ना. नजर का मतलब यही हो गया कि तुम कौन सी नजर है गैरुल्लाह, भाई? अल्लाह के सिवा तुम्हारे देवी देवताओं का नाम डाल रहे हो उसके ऊपर, तो वो जाहिर सी बात है हराम है. एडम भाई एक नाम आर्गुमेंट डालो या मत डालो, तुमने तुम्हारी नजर तो इस्लाम, तुम्हारी नजर तो थी ना उस पे. नजर तो थी कि तुमने भाई तुम्हारे देवी देवताओं का जो कर रहे हो, मना रहे हो, इसी वजह से तो तुम इस चीज पे दे रहे हो. जाहिर सी बात है उस पर नजर पड़ी है, वो हराम है. अरे सुनो ना, एक लाइन में बोलो साहिल भाई को. साहिल भाई, ये लोग ना सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं. ये लोग मिठाइयों के मामले में खुद ही जलेबी बनाते हैं, खुद ही खा लेते हैं.
टेंशन ही खत्म। जलेबी बर्फी सब खाते हैं भाई, मगर हलाल का खाते हैं, हराम का नहीं खाते हैं। नहीं लेकिन मिठाई तो जो हिंदू बनाता है वो तो हराम अपने भगवान हमको का नाम हराम लेके शुरू करता है ना। हराम सुनो का सुनो नहीं अरे चलेगा। सुनो हाँ सुनो, जब कोई हिंदू हाँ की दुकान से आप मिठाई लेते हो, वो हाँ जब मिठाई बनाना शुरू करता है, वो बिस्मिल्लाह करके तो नहीं ना करता, वो तो कहता होगा जय महादेव, जय भगवान, थैंक नहीं यू नहीं, सो वेरी मच, मेरी अगर आज वो की मिठाई करता होगा मुस्लिमों में वो बेहतरीन करता तौर पे होगा बिके, और आप मुस्लिम वो वहां से करता जाके ले होगा लेते ठीक हो। है। अल्लाह के नबी ने कहा एक औरत थी, एक औरत एक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये हमारे घर गोश्त आता है। हजरत आयशा ने कहा हमारे घर गोश्त आता है तो क्या उस पे हमें शुबह रहता है कि उस पे अल्लाह का नाम लें या ना लें, नाम लिया गया है या ना लिया गया है, तो हम क्या इसे खा लिया करें? तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुम बिस्मिल्लाह करके खा लिया करो, ये तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगा। तो जब 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 तो जब हाँ आपको दिवाली की मिठाई आए तब भी खा लिया करो, क्या मसला उसमें? बिस्मिल्लाह बोल के हाँ खा लो। हाँ हाँ, उस वक्त दिवाली की मिठाई नहीं खाएंगे। अब उस पर नजर पड़ गई ना, उस पर नजर आ गई तो नहीं खाएंगे यार ना भाई। तो क्या यार पागल आप है। ये कहना चाहते हो, दांत के सुनो, नोक पे। आप ये कहना चाहते हो कि आपका खुदा काफिरों के खुदा से कमजोर है। अरे भाई अल्लाह का अल, 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 अल्लाह को तुम कमजोर समझ रहे हो, जब तुम्हारे को अल्लाह की अभी पड़ी नहीं है। जब तुम्हें अल्लाह की पड़ेगी तो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह कितना मजबूत है। अल्लाह इसीलिए तो छूट दिया हुआ है कि तुम कमजोर हो। नहीं ये कौन सी झूठ है कि वो यार ये कैसे की झूठ है? अरे यही तो चीज अच्छा छूट अल्लाह दिया हुआ कि मजबूत तुम है, कमजोर। अल्लाह कहता नहीं है हमने तुम्हें कमजोर बनाया है। अल्लाह कब? मजबूत है मजबूत भाई, मजबूत है। अल्लाह मजबूत है। कैसे मतलब, क्या कैसा मजबूत है? ऐसा लोहे एकदम जैसा? टाइट है, अल्लाह ताला हट्टा छूट कट्टा है? दिया हुआ है। अगर अल्लाह का अजाब आएगा तो अल्लाह ऐसा तोड़ के रख देगा कि दोबारा उठने भी नहीं पाओगे तुम लेकिन लोग। अल्लाह अल्लाह अच्छा साहिल में मैं बताऊं अल्लाह कितना मजबूत है। अगर अगर अल्लाह इल्हाद मैं करोगे, बताता हूँ, उबैद अल्लाह उबैद अल्लाह के उबैद फितरत से इल्हाद उबैदी करोगे तो अल्लाह उबैदी ऐसा बेगम तोड़ देगा उबैदी बेगम रुक, कि मैं बताता हूँ। दोबारा अल्लाह उठने के लायक इतना नहीं इतना रहोगे। इतना ताकतवर है कि उसने कोरोना हम्म डाला अपने हर में हम्म काबा के अंदर, और हम्म, लोग जो है ना 6-6 हाँ 8-8 फुट दूर बैठ के नमाजें पढ़ना शुरू हुए, और हर में काबा का हाँ। तवाफ रुक गया कई दिनों कई हफ्तों तक। अल्लाह ताला इतना मजबूत है अल्लाह के उसने अपने ही घर में अजाब दाखिल कर दिया। दो 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 लोगों अल्लाह ताला दो नजरिया नहीं डालता है। अल्लाह ताला ये नहीं डालता है कि ये काबा के अंदर नहीं फैलेगा, भाई ने यहाँ अपने फैलेगा वहाँ नहीं अपने घर में फैलेगा। अजाब अल्लाह डाल ने दिया अल्लाह ने। वहाँ बुरा है, वहाँ पे अगर बुरे लोग साहिल हैं तो वहाँ अल्लाह पे ने भी अपने ही पड़ेगा। घर में अजाब डाल दिया यार, ये क्या बात हुई? हाँ सही बात साहिल है। जाहिर सी बात मजबूत है। बंदा अल्लाह अपने से ही घर पूछो में अगर अजाब ना। डाल रहा है। अगर तुम्हारे घर में एक भाई अमीन है, एक भाई कातिल है, एक भाई अमीन है, एक भाई कातिल है, तो जाहिर सी बात है कातिल और अमन दोनों के ऊपर फितने पड़ेंगे ना। अभी फितने में से अरे भाई जो काबिल है, भाई वो तो भाई निकलेगा ना। जो अमीन है वो भाई तो लेगा ना उसकी ओ तब। यार अल्लाह का अजाब काबे में क्यों आया? काबे पे नहीं आएगा ना अल्लाह का वो तो उसका अपना घर था। अरे तो अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाला है ना, इब्तिला आजमाइश में किया है ना, अजाब डाला ना अपने घर में, इब्तिला अजाब कौन किया है, डालता है? डालेगा ही। अब अल्लाह तो साहिल सबको अगर साहिल आजमाएगा, अगर साहिल अगर ताकत अल्लाह वालो, सबको आजमाएगा, सुन सुन अल्लाह सुन, सबको आजमाएगा। ऐसा थोड़ी अबे ना सुना कर, एक दो को कान आजमाएगा। है तेरे पास एक मुंह है, बोल नहीं जाता है, भौंकों की तरह सुनता है नहीं, तो ये म्यूट किया मैंने। अगर किसी बंदे के पास ताकत हो और वो अजाब हाँ डालेगा, वो अपने घर पे तो नहीं डालेगा, वो दूसरों के घर में डालेगा। अल्लाह कितना हाँ ढुल्ला है बेचारा कि तो उसने अजाब अपने ही घर में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह दो दो नजरिया नहीं करता है अपना घर। अल्लाह ताला फितरत सलीम देखता है। ओए होए 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 होए। अल्लाह ताला यानी कि अल्लाह अगर अगर कारपेट अगर बॉम्बिंग बंदा करता है। सुन सुन सुन, अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग, अगर सुन सुन बंदा सुन, अल्लाह साहिल भाई अल्लाह कारपेट बॉम्बिंग करता है, अल्लाह नहीं देखता कि उसका अपना है या पराया है, वो कारपेट हाँ बॉम्बिंग जो करता आए है। उससे अपना अच्छा और तो अभी पराया का। नहीं हो सकता। यार अपना भी एक मिनट रुको, रहेगा, एक मिनट रुको। अपना भी रहेगा, अपना भी रहेगा तो वो भी पराया रहेगा। अगर अगर वो अल्लाह के फरामीन पे नहीं चल रहा है अच्छा तो मेरे को अल्लाह एक उस बात पे भी बताओ डालेगा अजाब। दोनों पे कि अजाब अल्लाह डालेगा, ज्यादा, भाई मेरी बात दोनों पे सुनो, अजाब। अब ये बताओ कि अल्लाह ज्यादा मजबूत है, अल्लाह ज्यादा कारसाज है कि जो आज की टेक्नोलॉजी आ रही है कि भाई हम्म जिसको टारगेट करना है, यानी अगर मिसाइल भी बनाते हैं,
جہاں پہ ہاں ٹارگٹ کرنا ہے وہ ٹارگٹ اسی کو ہی لگے گا, کسی اور کو نہیں لگے گا. تو اللہ ہاں سے اچھے تو انسان کی ٹیکنالوجی ہے یار. انسان ارے یہ اللہ سے ہر زیادہ جگہ طاقتور پہ ہو اللہ گیا سنو یار. فیل کیوں ہو جاتا ہے, ہر انسان کا جگہ ارے زیادہ پہ اللہ پہلے طاقتور. کیوں بات فیل ہو سنو جاتا ہے یار. سنو, یہ جو تم ٹیکنالوجی بول رہے ہو, یہ ٹیکنالوجی یہ سب اسباب ہیں, یہ سب اسباب ہیں. اور 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 یہ جو کتابیں ہیں نا, کتابیں یہ احکام ہیں. یار اللہ جن یہ والا کتابوں سے احکام لے کے سبب یوز کیوں نہیں کر لیتا؟ اسباب لیتے ہیں. سن لو, اللہ کیوں نہیں کتابوں یوز سے کر لیتا؟ احکام لے کے اسباب لیتے ہیں, تب جا کے اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ مت ارے بول اللہ، کہ اللہ, ارے سن تو لے، جواب کیا دے گا تو جب تو سنتا نہیں ہے؟ میری بات اللہ ایسا سن سبب کیوں لے. نہیں یوز کر لیتا کہ ٹارگٹ بمبنگ کرے؟ کارپیٹ بمبنگ کیوں کر رہے ٹارگیٹ ہے؟ بومبنگ, ارے تو کرے گا ہی نا. تم جب دنیا کو فتنہ کا اڈا بنائے ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ میزائل ہی دے گا نا بنانے کے لیے, تمہارے کو اسی میں ڈالے گا نا. تم فتنے ابے کا اڈا ڈنگر بنائے یہ ہو, نہیں پوچھا تمہاری میں نے یہ پوچھا عورتیں اللہ ہیں کارپیٹ بمبنگ ننگی کیوں کرتا ہے؟ گھومیں گی, تم چڈا کو صرف پہن کے گھومو مشرکوں کو گے. مارے نا، اپنے گھر میں کیوں عذاب ڈال رہا ہے؟ ارے اللہ اپنے گھر میں ہی ساحل بھائی دو اپنا ایک ہی اور دوسرا دوستوں کو بھائی, لیں یار، پتہ لگے اپنا ہی کوئی جواب دوسرا دے بھائی سکے۔ سن لینا تو پورا جواب اللہ دیتا ہوں. تو کارپیٹ کون بمبنگ کیوں چاہتا ہے کر رہا ہے یہ پتا کرے ذرا بجا کے کسی رکھ سے۔ دیتا ہوں نا. بات کر لے, ہمت ہے تو اللہ ابے تعالیٰ ڈنگر تو ریپیٹ کری سب جا پہ رہا ہے، کیا ڈالے گا, بات کروں اپنے تیرے پہ سے؟ کیوں نہیں لے گا؟ اپنا ہی غیر ہے, اپنا ہی غیر ہوگا, اللہ کی عبادت نہیں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے تم حقوق اچھے اللہ حقوق مسلموں کو العباد کیوں نہیں کرے مارتا گا. ہے؟ ارے اللہ اچھوں کو بھی ڈالے گا, جب ظاہر سی بات ہے. جب تم امر بالمعروف نہیں کرو گے, معروف کا امر نہیں کرو گے, منکرات سے نہیں کرو گے, تو تم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈالے ہاں گا, نا، اس میں اچھوں کو لوگوں کو بھی لیکن وہ ڈالے گا. اپنوں کو بھی مار حدیث دیتا ہے نا، ڈالوں کیا اوپر؟ 2 ہاں, نمبر ہوا نا۔ 2 نمبر کیوں ہوا؟ اچھا میں کیسے میوٹ پہ 2 تھا. نمبر ہوا؟ 1 نمبر پہ ڈال رہا ہوں میں. یار اللہ 2 نمبر ہوا نا، اپنوں کو ماری جا رہا ہے۔ میں اچھا اپنے مطلب گھر دو میں اس کا نمبر گولی مطلب مار دوں؟ یہ ہے ایڈم, ہاں اس کا مطلب یہ ہے بھائی کے حساب سے کہ وہ جو حج پہ کچھ سالوں میں کبھی ابھی لاسٹ ٹائم پہ کرین گری تھی اور کئی سارے حاجی جو ہے اس میں مر گئے تھے, یہ اصل میں اللہ ان کے اوپر, ان حاجیوں کے اوپر اس لیے عذاب ڈالا تھا کیونکہ وہ لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلا رہے تھے اور برائی سے نہیں روک رہے تھے, اس وجہ سے امر اپنے گھر پہ بالمعروف بلا کے ان و پہ کرین نہی ڈالا ہے. عن المنکر. اللہ ہاں تعالیٰ وہی کہہ کہتا رہا ہے ہوں, حقوق اللہ بھی ادا کرنا ہے, حقوق العباد بھی ادا کرنا ہے. تو امر اس وجہ ہے سے نا. ان حاجیوں کو مارا تھا. اگر نہیں کرو گے تو تم نہیں کر, یہ وجہ نہیں رہتا ہے. اس کے اندر اچھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اس میں اچھے لوگ بھی جاتے ہیں, مگر ایک منٹ انہیں ان کی فطرت پہ اٹھایا جائے گا. اچھا ایک منٹ رکو بھائی. اس بندے نے جتنا آج اللہ کو ایکسپوز کیا ہے, یہی بندے تھے جو بولے اللہ لڑاتا ہے انسانوں کو, اور اس کے بعد اور ایک چیز جو ہے اللہ جو ہے وہ جیسے اللہ ایڈم نے بتایا آزمانے کے کارپیٹ لیے بمبنگ. لڑاتا ہے, ارے رکو نا کفر پہ یار, لڑاتا ہے. رکو. ہاں ٹھیک ہے, میرے کو بات تو کمپلیٹ کرنے دو, لوگوں تک رکھنے دو. ٹھیک ہے, کر لے. اچھا ابھی میں نے ایک مثال ان کو دیا تھا کہ جو لوگ حج پہ جاتے ہیں, اور ابھی جو ریسنٹلی میرے خیال سے 3-4 سال پہلے یہ حادثہ ہوا تھا, بےچارے وہ حاجی لاکھوں روپیہ, اس میں سے کئی حاجی ایسے ہوں گے جو زندگی میں اپنا بھلا نہیں دیکھے, اپنی زندگی نہیں جیے, بلکہ پیسہ اس لیے بچائے تاکہ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے, اللہ ان سے خوش ہوگا. اللہ نے وہاں پہ ان کو بلوا کے ان کے اوپر سے ایسی کرین گرائی کہ وہ سب چپک کے مر گئے. وجہ یہ تھی کہ اللہ ان کو عذاب اس لیے دیا کیونکہ وہ نیکی کی طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے تھے, اچھائی کی طرف نہیں بلا رہے تھے, اور برائی سے روک نہیں رہے تھے لوگوں کو. یہ ہے اللہ آپ کا, اچھا یہ جو یہ ہے اسلام. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے, یہ فرض کفایہ یا فرض عین ہے؟ فرض ہاں عین ہے, بھائی عبید بھائی, فرض عین ہے, کہاں لکھا؟ فرض عین ہے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا فرض عین ہے. کہاں لکھا؟ اللہ کہاں لکھا ہے؟ فرض عین مطلب بالکل فرض ہے تمہارے اوپر, اگر تم نہیں کرو گے فرض نہیں کفایہ کرو وہ گے ہوتا ہے، فرض تو کفایہ اور فرض عین میں فرق بتا. فرض عین مطلب ضروری ہے. اور فرض کفایہ فرض کفایہ مطلب کہ اگر کرو تو ٹھیک ہے, نہیں کرو گے تو بھی تمہارے لیے ساحل، ٹھیک ہے, اس سے مزید تمہارے بات لیے کرنی چاہیے. ایک چارہ ہے نکلنے کا. نہیں سمجھ میں آئے گا, نہیں ہائے سمجھا گیا. ہائے ہاں یار. تو
अच्छा एक ये गुड जो न्यूज सुने हो ये क्या जो एडम, जब तक बोल रहे हो ना, उबैद अल्लाह भाई की बात नहीं लाठी जब करते। पड़ेगी ना, हाँ हाँ ये हाँ हाँ, बात बोलो याद बोलो। रखो, ये बात याद रखो, ये दुनिया जो है ना फितरत पर है, दुनिया कौन सी वाली? दुनिया दारे कौन सी असबाब है, वाली? असबाब कौन सी वाली फितरत पे है? फितरत पे है। अगर फितरत कौन फितरत सी वाली सलीम, फितरत पे है? फितरत सलीम, सलीम क्या मेरी फितरत है दुनिया की? सलीम सलीम किसकी है? सलीम किसकी सलीम है? किसकी? वो तो अनारकली का सलीम था। फितरत सलीम है, फितरत नहीं, सलीम। वो तो अनारकली का था सलीम। अनारकली की है, टॉफी की है, वो छोड़ दो। फितरत सलीम बोल रहा हूँ, सलीम तो सुनो तुम। अनारकली का था। तो अनारकली पेट में गई है और टॉफी भी पेट में जाएगी। नहीं भाई, किस पेट में जाएगी? मैं तो कह रहा हूँ मेरे मैं सलीम तो बोल रहा हूँ अनारकली का फितरत था। फितरत होता है। एक तो तुम्हारी फितरत इल्हाद की फितरत है, इस्लाम के साथ इल्हाद कर रहे हो। अगर ये बताओ, अल्लाह का अजाब आया तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा सिवाय अल्लाह के, ये बात याद रखो। अल्लाह भी तो नहीं, वो अल्लाह हमारे पे एडम एक मिनट, उबैद भाई आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह जब हम पे अजाब डालेगा तो हमारे साथ और बाकी के जो मुसलमान है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं मुस्लिम एरिया में रह रहा हूँ तो अल्लाह जब अजाब देगा, अल्लाह तो कारपेट बॉम्बिंग करता है, कारपेट अजाब देता है, बस सैलाब तो लेके आएगा। मतलब हमारे हमारे साथ जो है वो मुसलमान भी उसमें मरेंगे। अरे भाई ऐसा नहीं है। जो जो लोग ईमान 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 के वाले जो रहते, मोमिन रहते हैं ना, अल्लाह ताला उनको हाँ बचा भी लेता है। मगर हाँ जो लोग बिल्कुल इल्हाद पे ही रहते हैं, कभी इधर कभी उधर रहते हैं ना, तो वो भी साथ में आ जाते हैं। बोल इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि उसके साथ मोमिन अच्छा, मुसलमान भी मतलब ये हादसों में, समझे। मतलब भाई भाई ये कहना चाह रहे, कितना अच्छा अल्लाह है देखो, कि जो हादसों में मुसलमान मर जाते हैं असल में वो पक्के मुसलमान नहीं है, वो गड़बड़ी वाले मुसलमान हैं, इस वजह से वो हादसे में उनकी भी जान गई है। हाय, वाह 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 रे मेरे अल्लाह। अब वो दो फरिश्तों का क्या बना जो आगे पीछे खड़े होते हैं सुनो बचाने के सुनो लिए? सुनो सुनो, वो हाफिज फरिश्ते हैं, वो किधर जाते हैं उस एक वक्त? बात बताता हूँ आपको, एक बात बताता हूँ। हम्म। जब अम्र अम्र बिल मारूफ नहीं करेंगे, मारूफ अरे का अम्र डंगर, नहीं ये सबसे करेंगे, पहले पूछा था मैंने, सुन वो फर्दे ले। किफाया या फर्दे ऐन, उसका रेफरेंस दिया नहीं, तुझे पता ही नहीं फर्दे किफाया क्या होता है? हटा दो इन्हें, मैं तो कह रहा हूँ और फर्दे भी किफाया लोग किफाया हैं। को ये मत होता जाना है, तुम। सुनो सुनो, फर्ज किफाया ये होता है कि अगर पूरी कम्युनिटी में से चंद एक ने भी कर दिया ना, तो सबकी लीगल ऑब्लिगेशन पूरी हो चुकी है। ये फर्ज किफाया होता है। फॉर एग्जांपल, नमाज जनाजा, नमाज जनाजा को पूरी की पूरी कम्युनिटी को अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर उस मोहल्ले से कुछ लोगों ने भी अदा कर दिया है तो पूरी हो गई ऑब्लिगेशन। सो डोंट यू डेयर टेल मी कि फर्ज किफाया कुछ और होता है। तुम लोगों को अम्ब का पता नहीं है, तुम लोग डिबेट करने आ जाते, तुमने अम्ब का नहीं पता। अम्ब अरे जाके तुमको केले का नहीं 100 पता रुपए है। किलो मिलते हैं, जाके ले लो। तुम्हें अच्छा अम्बों का पता लगे, अम्ब किसे कहते हैं? अरे अच्छा, यहाँ इनसे 20 मैं एक रुपए सवाल किलो करता मिलता है हूँ, भाई। उबैदुर रहमान खान, अब उबैदुर रहमान खान मुझे एक बात बताओ, ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है, इसमें मूर्ति पूजा भी शामिल है? हाँ सब शामिल है, हम मारूफ अच्छा में सब अगर, शामिल है। शिर्क शिर्क हाँ का इनकार करना, शिर्क अच्छा का, अच्छा, आपके कुफ्र का, सामने, सब का शामिल होगा। आपके, अच्छा हाँ आपके एरिया में एक मंदिर हाँ है मिसाल के तौर हाँ पे, वहां पे शिर्क हो रहा है, हाँ। ये मंदिर में आप क्या कैसे यूनिटी हो रोकोगे? रही होगी, शिरकी हो रहा होगा ना। सही क्या कर रहा है यार? हाँ आप कैसे रोकोगे, हाँ? कैसे रोकोगे उसको? हमारा हमारा काम है अम्र करना, उनको दावत देना, अमन और सलामती की दावत देना है उनको, दावत से नहीं कि मान भाई रहा ये शर है, वो, नहीं मान शिर्क रहा वो। नहीं शर है, दावत से नहीं मान रहा, दावत से नहीं मान रहा। शिर्क शर है। वो शर करेगा तो कैसे मनाओगे? उसके ऊपर जुल्म आएगा, उसके वो ऊपर दावत जुल्म से आएगा। नहीं मान, अरे मेरे नहीं आएगा भाई तो वो उसका दावत से, उसका वबाल अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी वबाल देगा। अल्लाह ताला ने कहा है, तो तू तो जब अम्ब हो जब गया। लोग करते हैं तो उसे दुनिया में भी अजाब होता है। अरे भाई, उसे तू तो जब फिर अम्ब हो अजाब गया ना। होगा, तूने तो नहीं रोक सका ना। अमर बिन मारूफ नहीं हाँ कर सका, नहीं नहीं तो कर रहे हैं नहीं ना, अनिल तो मुनकर नहीं नहीं कर अनिल सका। मुनकर नहीं कर सके। हाँ, नहीं अनिल मुनकर नहीं कर सका। नहीं करेगा तो अल्लाह का अजाब आएगा, अबे अल्लाह तो का तू तो अजाब कुछ नहीं आएगा। कर सका ना। अम्ब तो वो कारपेट बॉम्बिंग में तू भी अम्ब और केले की रुलेगा ना फिर। छोड़ना अच्छा भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उबैदुर अल्लाह का रहमान साहब मैं अजाब एक आएगा ना एग्जांपल उसपे। देता हूँ। तो अच्छा तेरे में भी मैं एक आएगा ना। एग्जांपल देता हूँ,
मेरे पे इस कैसे तरीके से आएगा? एग्जांपल देते हैं। मैं एक मिनट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अरे मैं तो रुको यार, मैं तो ओबेदुर रहमान मेरे पे साहब रुको आएगा ना, तो मैं बताता हूँ। अभी मिसाल के तौर पे आप समझो कि आपके पास इतनी पावर है, ठीक है, आपके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, ठीक है, वो भी ऐसा बॉम्ब है जिससे आप टारगेट किलिंग कर सकते हो, यानी उससे दूसरे मुसलमान जो है, अगर आपने टारगेट बनाया तो उससे दूसरे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या बात है यार, रिलीजियस रोकने फॉर्म की, आ गया। हाँ देखते ना भाई क्या करेंगे। आपके एरिया में, या मान लो कि आपके सामने वाले बाजू वाले स्टेट में या बाजू वाले मुल्क में धड़ल्ले से शिर्क हो रहा है, मंदिर में पूजा हो रही है, सब हो रहा है, हाँ, आपके पास आपने उनको समझाया, ठीक है, दावत दी इस्लाम की, वो नहीं मान रहे, ठीक है। अब आपके पास सलाहियत भी है बॉम्ब की शक्ल में कि आपके पास बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब, टारगेट बॉम्बिंग आप कर सकते हो उस शिर्क को रोकने के लिए, क्योंकि वो बातों से नहीं मान रहे। तो आप क्या करेंगे? बॉम्ब से वो जो शिर्क का गढ़ है और वहां पे जो लोग हैं उनको उड़ा दोगे, रोकोगे, या क्या करोगे? बिल्कुल भी नहीं। उनको शर से रोकना है। शिर्क होता है, शिर्क है शर, फसाद, जुल्म। शिर्क जो करेगा, शिर्क इन्ना शिर्क लजुल्मुन अज़ीम, कैसे बहुत रोकोगे? मशहूर आयत है। रोकोगे कैसा? भाई आपके अकेले पास भाई अभी बॉम्ब भी चुप है? रहे। हाँ, तो भाई आपके पास मैं बॉम्ब है? बोल रहा हूँ, इन शिर्क जुल्म है, जुल्म, हाँ, क्योंकि अरे रोकोगे वो हो ना, जो मैं कैसे? बता रहा हूँ भाई, वही बात बोल रहा हूँ, सुन हाँ, लो भाई। वो जो शिर्क होगा तो वहां पे शर होगा, जुल्म होगा। शिर्क शर से बना हुआ है। शिर्क का मतलब शरीक रोकोगे करना भी होता है, कैसे? और उससे उसी का मस्दर है शर। लफ्ज हाँ, शर ठीक है, उसी का रोकोगे हिस्सा है। कैसे? समझ गए हम। अभी आगे बताओ कि रोकोगे कैसे? उसका रोकने का यही कर सकते हैं कि उन्हें मारूफ का अमर करना है, मारूफ का अमर करना रोकोगे है, कैसे? उन्हें मुनकरात से रोकना है। अगर वो नहीं नहीं मान रुके, रहे, भाई पनवेल की हाँ ट्रेन हाँ, हाँ, नहीं रुकते, नहीं रुकते, नहीं आए मान आए, रहे, नहीं हाँ, मान रहे, नहीं मान हाँ, रहे, तो वो फितना होगा। जाहिरी हाँ, बात है, वो फितना होगा, कुफ्र हाँ, इनकार होगा, इनकार कुफ्र हाँ, कुफ्र किया जाएगा। कुफ्र का मतलब हाँ, होता है कुफ्र होता है नफर से बना हुआ। कुफ्र अरे मतलब नफर हाँ, और रोकोगे इनकार। कैसे? जब ठीक है, नफरत और एडम एडम इनकार होगा, एडम आ रहा है, जब नफरत एडम और आ रहा है इनकार वो, होगा तो फितना होगा, फितना हाँ, होगा, दहशत होगा, फितना हाँ, होगा, फिर, दहशत होगा, फसाद, फितना और फसाद होगा, दहशत होगा, हाँ, जुल्म हाँ, होगा। फिर, और वहां की हाँ, बस्तियां शर्र फसाद और फितने से तर होंगी। किसी में हाँ, फिर, अमन सलामती अबे नहीं रह यार जाएगी। डंगर है, बहनचोद सारी एडम दुनिया एडम की आ बातें रहा अरे बताएगा, असल मुद्दा नहीं एडम आ अबे रहा बताएगा। है, आ रहा है, आ गधे रहा है। केले, हाँ, एक मिनट, एक मिनट, अरे एक आने मिनट, तो एक दो, सज्जन रुक जाओ चलो यार। पहुंच गए, अरे पहुंच फितरत गए, की बात कर, फितरत अरे फितरत भाई पे रहे। सज्जन रुक जाओ प्लीज, उनको बोलने दो। हाँ ठीक है, फिर हाँ, उसके बाद मैं क्या बोल रहा करोगे? हूँ कि हाँ, फितरत के खिलाफ जाएंगे। फितरत जो हाँ, अल्लाह ने बनाया है, फितरत हाँ, ठीक के है, फिर, खिलाफ जाएंगे। कुफ्र पे हाँ, रहेंगे, फिर, कुफ्र पे हाँ, रहेंगे फिर, तो नफरत होगा, इनकार हाँ, होगा, हाँ, फितना होगा, शर्रो फसाद हाँ, होगा, फिर कत्लो क़िताल फिर होगा, क्या करोगे? हाँ, नंगापन होगा। फितना होगा तो नंगापन होगा, हाँ, शर्रो फिर फसाद उसके होगा, बाद तो क्या फिर करोगे? कत्लो क़िताल होगा, सब कुछ होगा। अजाब, हाँ, अल्लाह का फिर अजाब तुम इसी क्या तरह से करोगे? आएगा। जब कुफ्र तुम करोगे कुछ नहीं करोगे, इस्लाम के खिलाफ, तो इसी तरह से अल्लाह अजाब डालेगा। और जब अल्लाह तो से तुम इलाहाद कुछ, करोगे तो तुम्हारी कदम उखाड़ के रख देगा, तो तुम अरे ना भाई सर के रह अल्लाह, जाओगे ना पैर के सुनो, रह जाओगे। मैंने आपको अभी म्यूट किया है। अल्लाह से बड़ा बेबस कोई एंटिटी नहीं है। एक मिनट सज्जन रुक जाओ, एक मिनट। अल्लाह से बड़ी अल्लाह ने बेबस तुम्हें एंटिटी छूट नहीं दिया है हुआ अल्लाह पे। अरे रुको यार, अल्लाह से बड़ी लाचार एंटिटी कोई नहीं है पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स के है। बाहर अगर है, यूनिवर्स के बाहर। सुन लो अल्लाह के यार मेरी सामने बात, तुम बहुत कमजोर। मैं आपसे अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं कि आप क्या करोगे। अगर मामला अल्लाह पे ही छोड़ना था तो रसूलुल्लाह और सहाबा ने जाके जंग क्यों की? ये क्यों ये ऑप्शन आजमाइश है, दिया, या तो इस्लाम कबूल सारे करो या तो फिर ये जिजिया दो? ये हाँ, आजमाइश है। ये दुनिया जो है आजमाइश है। यहाँ पे अल्लाह ताला तुम्हें
तुम्हें आजमाता है शर यहाँ पे तुम्हें तुम्हारे अरे कुरान में तुम लिखा हुआ क्या है तुम्हें करोगे वो बता दो, जब शर फैल गया है, मैं क्या फितना करूंगा फैल गया, सुन तुम क्या करोगे? वो बात करूंगा क्या वो तुम हिजरत कर लोगे या बताता लड़ाई हूँ करोगे? सिंपल बात बताओ, तुम इस इलाके में हो, हिजरत करोगे या लड़ाई पहले करोगे? मारूफ करना है पहले मारूफ करना है कर लिया मारूफ ना, से नहीं बैठ आगे करेंगे चल। अबे अरे नहीं केले एडम, नहीं अरे यार एडम भाई गलत है क्या मत एडम करते नहीं, हो? गलत अबे है 10 एडम, मिनट गलत हो गए, है। मुझे जवाब नहीं दे रहे यार। सिंपल एक सवाल मिनट है। मैं 2-3 लाइन बोल दूं भाई, मैं तो फिर लंबा टाइम चुप हो जाऊंगा। एक मिनट रुक जाओ। अगर उबैद भाई अगर वो उबैद शर भाई अरे फितना उबैद भाई करेंगे तो जाहिर सी अरे बात है उबैद इस्लाम अरे इस्लाम उबैद के खिलाफ भाई जैसे तुम लोग लड़ रहे हो इस्लाम के खिलाफ तो तुम लोग को अरे कुछ नहीं बोल रहा तुम थोड़ा लोग सा अपनी फितरत भाई पे उतर जाते हो बुजदिली पे उतर जाते भाई दो हाँ तीन बोलो लाइन। गालिब भाई। हाँ एक बार क्या हुआ ना कि दो लोगों की लड़ाई होने वाली थी, तो पब्लिक इंतजार करती रही कि अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी, अब लड़ाई होगी। जब बहुत देर तक लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने क्या अगर किया कि दोनों को ही अगर कूट मारा। रुको ना, अगर कुफ्र पहले म्यूट इस्लाम करो, पहले म्यूट करो। हाँ, जब बहुत देर तक वो इंतजार करने के बाद लड़ाई नहीं हुई तो पब्लिक ने दोनों को ही कूट मारा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि पब्लिक हम दोनों को हम लोगों को गाली न बकने क्यों लग जाए। क्यों म्यूट कर रहा बात तो पूरा हो जाने दे मेरी बात भी नहीं अभी भी हुई है बात पूरी हो रही है। अरे डंडा यार जवाब गधे जैसे दे। काय की एक मिनट, हटा he's दो, done। किसी और को ले लो यार। अच्छा, इनका लॉजिक एक्चुअली इस्लाम से मेल नहीं खाता है। वो इसलिए नहीं खाता अरे है नहीं कि साहिल, ये ये इंडिया में है साला, इसमें से जवाब नहीं दे रहा। हाँ असल में मैंने हदीस दिखा दी है तुम्हें, ये देखो हदीस हाँ क्या कहती है। तुमने मुंह से रोकना है, मुंह से रोकना है, मिडिल एरिया में है, मुंह से रोको। लेकिन मुंह से रोकने से पहले कुछ कहा है कि लेट हिम चेंज विद हिज हैंड। पहले हाथ से रोकना है साले। अगर नहीं हाथ से रोक सकते, इफ ही कैन नॉट देन विद हिज टंग। इंडिया में बैठे हाँ। हैं, उसे पता है वो हाथ से रोकेगा मारा जाएगा। इसीलिए मैंने उनको एक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब उनके पास दिया था ना कि भाई अब तो फेंक दे। नहीं अब फेंकेगा तो वो, बॉम्ब फेंक के If- मार दे। क्योंकि उसे पता है कि रियल लाइफ में वो जेल में हो जाएगा। इफ ही कैन हाँ। नॉट देन विद हिज हार्ट। फिर और ये हार्ट से वीकेस्ट ऑफ ईमान है। अरे भाई, अमर बिन मालूफ व नहीं अनिल मुनकर जो है वो फर्दे कफाया है। एक तो सब पे एप्लीकेबल ही नहीं है। कुछ लोग ही हाँ। कर ले तो मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। ठीक है, इलाके में से कुछ लोग कर ले, लेकिन इलाके में से कुछ लोगों ने किस लेवल पे करना है? हाथ से रोकना है। तू क्यों जा रहा है मंदिर? रुक, हाथ से। मैं अब तुझे रोकने तेरा नाक तोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, मुंह तोड़ दूंगा। हाथ से रोकना है। अगर तुम नहीं रोक सकते तो जुबान से रोकना है। सेकेंड लेवल, अगर जुबान से भी नहीं रोक सकते, हिंदू मेजोरिटी में रहता है ये, इर्द गिर्द 90% हिंदू है, 99% हिंदू है। ठीक है, तो दिल से बुरा जानेगा। और ये वीकेस्ट ऑफ फेथ है, कमजोर तरीन ईमान है, ज़ईफुल ईमान है। दिल से बुरा जानो। मुंह से कब रोक रहा है? सही जब बात। ये लोग 10-12% है, यार नहीं करो, अच्छी बात नहीं है, शिरक नहीं करो। अगर ताकत में आएंगे हाथ से रोकेंगे। अल्लाह का नबी बोलता क्या है? जो फेक नबी है क्या बोलता है? मैं बुत शिकन हूं, मैं आया हूं इस दुनिया में बुतों को बुतों को काटने के तोड़ने लिए। के लिए। एग्जैक्टली। अबे 15 मिनट हो गए, मेरा दिमाग खराब हो गया। दोनों उसका रिएक्शन ऐसा था हेडफोन से साहिल, सुन जैसे सुन मुझे के बताओ तो नहीं देगा मेरे जी। को वीडियो प्ले करो। एडम, मेरे को लग रहा था कि ये अभी बोलेगा मैं बम फोड़ूंगा, अभी बोलेगा, लेकिन वो उसने डाल दिया अल्लाह पे। उसका रिएक्शन ऐसा था लंदन जाफरी जैसा। अच्छा अब मैं भी ना नहीं बड़ी देर उड़वाना से अपनी इंतजार चीज कर रहा का। था कि साहिल भाई ने बम दिया है तो मैं बंदा नहीं अब बताऊंगा। फोड़ेगा, अब फोड़ेगा। हाँ लेकिन बंदे ने बम कहीं और ही डाल लिया। हाँ, वो अल्लाह। यार, ओ, हाय बाप हाय रे हाय। बाप। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, फिर दूसरे मोमिन को मौका देते हैं। नोएल शाह, आपके सुपर स्टिकर का बहुत शुक्रिया। रोहान सिंह कह रहे गुलाब दिया उनको। रोहन भाई कह रहे अल्लाह फाइट करता है, कराता है, ही रियलाइज कि ये क्या बोल दिया और मुंह में आ गया, सुपारी नहीं है। भूषण जुंगाला कह रहे दुकान वाले भी माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं। बिल्कुल, ये सब जुंगालाला- शिर्क वाला ही खाना खा अन्ना रहे हैं। पूजा क्या है? अन्ना पूजा क्या है? अन्न पूजा मतलब अन्न मतलब ये अनाज चावल अनाज को कहते हैं, या अनाज। अच्छा sorry। अच्छा, अनाज। रोहन भाई कह रहे रिचेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड पे क्यों अजाब नहीं आता, पर सब गर्दन मुस्लिम्स पे अजाब आता रहता है भाई।
हाँ, जो अमीर है उन पे कुछ नहीं होता है। कपिल यादव कह रहे भाई सो गया था पर मोमिनों की कॉमेडी से जाग गया। रोहन भाई कह रहे टेक्नोलॉजी आजाब है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अर्थ स्फेरिकल है। विष्णु भाई कह रहे आतंकिस में अहजाब क्यों आया बताओ, वहां तो मोमिन है। हाँ, सीरिया एरिया में आप देख लो। विष्णु कह रहे फिलिस्तीन के मोमिन क्यों थक रहे हैं यहूदियों से या थूक रहे हैं यहूदियों से। क्रांति कह रहे अल्लाह ने काबा में फ्रेंडली फायर ऑफ नहीं किया था। नो वरीज, मोमिन्स विल गेट 72 वर्जिन्स। वारी था ये। विष्णु जी कह रहे हैं शाहिदे के बाद तो शहीद के बाद तो हूर मिलेगी उन्हें, तो जल्दी मिलेगी। तन्मय कह रहे हैं एडम भाई जस्ट बॉट अ पेट PUG एंड नेम्ड हिम। अरे यार ऐसा मत करो यार, ये गलत है। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा बदतमीजी नाम है। रखे, अच्छा नाम रखे। आई गिव मी फूड वाटर एंड लॉट्स ऑफ लव। इंडियन कह रहे नाइस, नीचे भर ले अल्लाह का अजाब, बोंगिया मार रहा है। प्लीज कंटिन्यू सर भी आ गए। कह रहे हिंदू भाइयों को हैप्पी दिवाली और मोमिन भाइयों को हैप्पी दिनवाली। ऐ ईमान वालों, साहिल चचा के पास आकर एडम जी से चुटर फटवा लो। थैंक्स। विष्णु कह रहे अल्लाह छाप बॉम्ब ओनली फॉर नॉन मोमिन्स। तेजस मिरासी जी का कंट्रीब्यूशन आया, बहुत शुक्रिया। कह रहे ग्रेट वर्क साहिल, बिग फैन एडम एंड मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब्स वन लाइनर्स आर टू द पॉइंट एंड हिलेरियस। थैंक यू। इंडियन भाई कह रहे ये थोड़ी देर में खुद को अल्लाह घोषित करने वाला है। संदीप बाजवा कह रहे हैं थैंक यू साहिल, प्लीज कीप डूइंग द ग्रेट वर्क। थैंक यू संदीप जी। आई एम ग्रूट कह रहे दुनिया खत्म हो जाए लेकिन इस मोमिन को जवाब नहीं आएगा। किसी मोमिन के पास कोई जवाब नहीं है भाई, यार वो देना कोई ही नहीं जवाब चाहते नहीं है। यार, वो कैसे देंगे बेचारे, इंडिया में बैठ के कैसे जवाब देंगे। उन पाकिस्तानी मोमिनों को लाओ ना यार, जवाब देंगे तुम्हें ठक करके। होय 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 होय। इजिप्शियन मोमिनों रोमन को लाओ, एम्पायर, उठा करके जवाब देंगे। रोमन एम्पायर आ गई जी, पूरी की पूरी एम्पायर ही आ गई। ये मोमिन है रोमन एम्पायर क्या काफिर एम्पायर है? पूरी की पूरी एम्पायर ही यहाँ पे आ गई यार, क्या करें इनका। जी रोमन एम्पायर साहब, मोमिन है आप? जी सर, तो बहुत देर से मैं आप लोगों का सुन रहा था, तो बड़ी हाँ, अच्छी मोमिन लगी है आप लोगों की गुफ्तगू। सब, मोमिन है आप? ऑब्वियसली, तो ऐसा मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो सुना पहले दे सुन पहले लीजिए। के आप मोमिन हैं, कुछ टेस्ट ही दे दें, पहली दफा आए हैं। जी हाँ, सूरह पहली फातिहा। दफा आया। जी हाँ, पहली दफा आया, सुनना चाह रहे हैं आप लोगों का। मैं सुन रहा था अभी, एक मैंने बहुत देर से लगभग आधा घंटा वो सर सूरह पान सूरह असर और ही ये वो सुना फातिहा। बात हो रहा सूरह असर सुना दें सर, पता लगे आप मोमिन हैं। था। जो भी है, मेरा खाली सवाल आपसे एक है साहिल सर जी, अगर सवाल छोटा सा 10 कर सवाल है। लीजिएगा, सर पहले सूरह असर सुना दें, पता लगे आप मोमिन हैं। देखिए, सूरह फातिहा तो उसको भी याद है ना जो कल इस्लाम कबूल सूरह किया। असर पूछ रहा हूँ भाई, सूरह असर पूछ रहा हूँ। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुसर। ठीक है, आगे अब पढ़ते हैं आगे थोड़ा सा साहिल जी से पूछ। आगे 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 आगे। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। ठीक है, अब थोड़ा ओए आते हैं पास साहिल जी से पास एक छोटा। पास। जी हाँ साहिल जी, एक छोटा सा मेरा सवाल है, ऐसे मैं आपसे डिबेट नहीं करना आया हूँ। मेरा बस एक सवाल है, जैसे अभी आप लोग जो एक्स मुस्लिम अपने आप को बोल रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एक सवाल पूछ रहे हैं। एक्स मुस्लिम जो आप अपने आप को जैसे बोल रहे हैं, तो मतलब अभी जैसे आप लोग कौन सा धर्म में है? जैसे इस्लाम तो खैर छोड़ चुके हैं आप लोग, तो एक्स मुस्लिम जैसे मान लीजिए कल के डेट में आप रेलवे का फॉर्म भरेंगे या कोई भी जैसे जॉब वाले के लिए या फिर किसी तरह का, तो उसमें आपका रिलीजियन क्या रहेगा? लिखना जरूरी है रिलीजन? ये सिंपल सा लिखना सवाल। जरूरी नहीं है ना उसमें, नहीं, बस मैं लिखना लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है। जैसे क्यों क्यों लिखेंगे? रेलवे तो में काम मतलब करने के जैसे लिए धर्म क्यों लिखे, दीन क्यों लिखे, बताएं। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं एडम भी जी, मैं जेन्युइन ही डिबेट अच्छा नहीं जवाब दे कर रहा रहा हूँ हूँ। आपको। ठीक। मैं उसका जी आपको ये एक ये जवाब देता हूं कि ये जो हमारा जो एक्टिविज्म है,
یہ اسی لیے ہے کہ یہ ساری دنیا کو پتا چلے اینڈ آئی ایم شیور انڈین گورنمنٹ کو بھی پتا چلے گی, اور ان کو جب پتا چلے گا کہ ایک کمیونٹی ابھری ہے جو کہ پہلے سے ہے اور اس کا ابھی جو ہے وہ کافی تعداد میں آ رہی ہے, تو ہم ایک اس میں ایک عرضی ڈال کر ایک سیکشن, اگر جہاں پہ دھرم لکھنا یا ریلیجن لکھنا مینڈیٹری ہوگا تو ہم وہاں پہ ایک باکس ایڈ کروائیں گے ایکس مسلم نام کا. نہیں ساحل یا کیوں agnostic کیوں نام کیوں کا. کیوں کیوں یہ ہاں, بھائی یہ اگر بھائی کہاں پہ ایسے ہیں؟ یہ ضرورت تو انڈیا ہے سے ہیں نہیں. پاکستان سے ہیں؟ آپ پاکستان سے انڈیا سے ہیں؟ انڈیا. انڈیا سے ہیں. کیا انڈیا میں کوئی ایک اسپیسیفک جگہ ہے جہاں پہ ریلیجن ضروری ہے لکھنا؟ اٹ از مینڈیٹری, اس کے بغیر فارم فل نہیں ہو سکتا. ہے کوئی جگہ؟ نہیں کئی جگہ بھرنا پڑتا سر ہے. میں بس یہ ہاں 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 سوال میں ضروری پوچھ ہے, رہا ہوں. ضروری. اسکالرشپ کے لیے مائنورٹی اسکالرشپ ایڈم. ہاں نہیں یہی میں پوچھ رہا ہوں, کیا انڈیا میں کوئی ایسی لوکیشن ہے جہاں اور پہ ساحل ریلیجن کا جی لکھنا ضروری ہو؟ اچھا ٹھیک ہے ایڈم دیکھو جی, ایک فارم, اور سر سوال سنیں میں ذرا, آپ سر سے, سر ایک سیکنڈ جیسے سوال کو مان ذرا, لیجیے. سر ایک سیکنڈ اچھا سوال ٹھیک کو ہے, ذرا ہاں سن لیں, بولیے سوال کو بولیے ذرا سن لیں, اس کا جواب دے دیں, پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں اچھے طریقے سے. دیکھیں بھائی, کیا بولیے. انڈیا میں کوئی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ریلیجن کا کالم مینڈیٹری ہو لکھنا؟ از دیئر ون؟ آپ کہاں سے؟ یوگانڈا. پاکستان سے. کیا انڈیا میں کوئی اچھا ایسی جگہ ہے جہاں پہ ریلیجن کا کالم ضروری ہو لکھنا؟ میرے سوال کا جواب دے دیں سر پلیز. تو دیکھیے آپ انڈیا سے نہیں تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے, یہاں پہ فارم وغیرہ جو ارے بھرا تھا اس یار میں جو میرے بھرایا تھا, سوال کی اس ٹھیک کا ہے, جواب دے کیونکہ دو یار, میں یہ سمجھوں کیونکہ یا نہ سمجھوں میرے اوپر ہے. میں نے کہا کہ انڈیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ریلیجن کا کالم کو فل کرنا ضروری ہو, مینڈیٹری ہو.